یہ خواب میں نے عجیب دیکھا نبی کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جہالت کس چیز کا نام ہے؟ جہالت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کے پاس نالج نہ ہو، علم نہ ہو۔ جہالت اس چیز کا نام ہے کہ انسان کے پاس نالج ہو لیکن اس کے باوجود انسان اس کو چھپائے، انسان اس کے باوجود علم کا انکار کرے، اسے جہالت کہتے ہیں۔ اس لیے کہ تاریخ میں ایک شخص کو ابو جہل کہا جاتا ہے، تو ابو جہل کہنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل تھا، اسے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا۔ جب تک اس نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت کا انکار نہیں کیا تھا، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہونے کا جو ہے وہ انکار نہیں کیا تھا، اس وقت تک اس کا ٹائٹل جو تھا وہ ابو الحکمت تھا۔ لوگ اس سے فیصلے کروایا کرتے تھے، لیکن جب اس نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا، اسے ابو جہل کہا گیا۔ آج میری نظروں سے ایک کلپ گزرا، جس کلپ میں ایک مولانا صاحب نے بڑے ہی جوشیلے انداز میں اس بات کا انکار کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی زندگی میں ایک مرتبہ بھی نماز جو ہے وہ رفع یدین کے بغیر پڑھی ہو۔ انہوں نے ٹوٹلی انکار کر دیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کوئی ایک نماز کی ایک رکعت بھی انہوں نے کبھی رفع یدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ رفع یدین سے مراد یہ ہے کہ جب ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ نماز میں فقہ شافعی یا دیگر فقہائے کرام جو ہے یہ رکوع سے پہلے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ فقہ حنفی بھی عمل کرنے والے، ہم صرف شروع میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت، اس کے علاوہ ہم لوگ اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے۔ تو ایک عزیز نے مجھے یہ ویڈیو سینڈ کی کہ جناب یہ بتائیے کہ یہ جو صاحب فرما رہے ہیں، اب انہوں نے کیا دعویٰ کیا، آپ خود سنیے اور پھر آپ حیران ہوئیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین مصطفی ہے، کس انداز میں لوگ اپنے ذاتی جو ہے وہ مشہوری کے لیے اور اس قسم کے لوگ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح حدیث طیبہ کا انکار کیا جا رہا ہے اور اسے جو ہے وہ دین کی خدمت سمجھا جا رہا ہے۔ آئیے پہلے آپ ذرا کلپ سماعت فرمائیے، اس کے بعد پھر میں مزید گفتگو کرتا ہوں۔ میں اس وقت آپ کے سامنے باوضو حاضر ہوں، رب اکبر کی قسم ہے، قرآن کو دو ہاتھ میں لے کے کہہ سکتا ہوں، سر پہ کہو تو اٹھا کے کہہ سکتا ہوں، بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے خلاف کعبہ پکڑ کے کہہ سکتا ہوں، میرے پیغمبر نے ایک نماز کی ایک رکعت کا ایک رکوع بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا۔ اب جو کہتے ہیں میں نہیں کروں گا اس حلف کے بعد بھی، تو اس کا گریبان اور میرا قیامت والے دن ہاتھ ہوگا، اور اگر میں نے مسجد میں بیٹھ کے غلط بیانی کی ہو تو ہاتھ تیرا، گریبان میرا ہو۔ اللہ کی عدالت ہوگی۔ اگر میں نے غلط بیانی کی ہے، لا علمی میں نہیں کہہ رہا، جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کے دلائل اس وقت میرے دماغ میں سارے عقلی نقلی دلائل ضعیف جو کچھ ہے میرے ذہن میں ایک ایک دلیل گھوم رہی ہے، سارے دلائل سے آگاہ ہونے کے بعد کہہ رہا ہوں، پوری امانت سے، دیانت سے، قبر کو، آخرت کو، رب کے سامنے پیشی کو، اپنی جہنم اور جنت کے حوالے سے ایمان رکھنے کے بعد کہ جی تو ناظرین، آپ نے ویڈیو دیکھ لی۔ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ نے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے قریب لوگ علماء کو چھوڑ کر جہلاء سے فتوے لیں گے اور خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اب اس حدیث مبارکہ کو یہ جو علامہ صاحب جو بھی ہیں، انہوں نے جو کچھ بیان کیا، اب ان کے بیان کے بعد تو یوں لگا کہ پوری دنیا میں جو فقہ حنفی پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان کی تمام نمازیں جو ہے وہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ انہوں نے جو نماز پڑھی آج تک وہ تو بالکل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے خلاف پڑھی۔ حالانکہ ناظرین ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث طیبہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین سے روکا یا صحابہ کرام نے رفع یدین ترک کیا،
उसका जिक्र है जो मैं अभी आपके सामने सुनाता हूँ। इसके बावजूद ये बात समाप्त फरमाइए कि हमारे यहाँ जो बंदा रफ़ा यदैन से नमाज पढ़ता है, हम कभी भी उसके ऊपर इस तरह शिद्दत के साथ फतवा नहीं लगाते, बल्कि हम लोग उसकी नमाज को भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ही समझते हैं, क्योंकि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने ये रफ़ा यदैन करके नमाज पढ़ी, जिस तरह के आपने रफ़ा यदैन तर्क करके भी नमाज पढ़ी। बहुत सारे ऐसे अमाल हैं जो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदान किए, बाद में आपने उनको तर्क कर दिया, तो रफ़ा यदैन भी उनमें से एक है। लेकिन इतनी बड़ी ये बात कर देना कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कोई एक रकअत, कोई एक नमाज ऐसी नहीं पढ़ी जिसमें आपने रफ़ा यदैन को तर्क किया हो, ये एक बहुत बड़ा बुहतान है मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, और बहुत बड़ा बुहतान है कि जिससे हदीस मुबारका का सरेआम जो है वो इतने बड़े मजमा के सामने ये शख्स जो है वो इनकार कर रहा है। हालांकि एक हदीस मुबारका का भी इनकार करने वाला शख्स, अगर वो हदीस मुबारका हमारे कायद से है, अमाल से है, हदीस भी अगर मुतवातिर है, तो उस हदीस मुबारका का इनकार करने वाले को हम मुसलमान ही नहीं कहते। तो नाज़रीन, यहाँ पर आप समात फरमाइए वो हदीस तैयबा जिनमें हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया या सहाबा किराम ने बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कैसे पढ़ी। सबसे पहली जो हदीस मुबारका मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, इसको इमाम, मैं सिर्फ तर्जमा पढ़ूंगा क्योंकि वक्त कम है कि मैं सारी डिटेल के साथ जो है हदीस तैयबा आपके सामने अरबी भी पढ़ूं। तो सबसे पहली जो हदीस मुबारका है वो हम मुस्नद अबी याला अल मुस्ली, और इसके अलावा इस हदीस मुबारका को इमाम तहावी ने रवायत किया, इसके अलावा इस हदीस मुबारका को इमाम अबू दाऊद ने रवायत किया, और आप जानते हैं कि सुनन अबी दाऊद जो है ये बजाते खुद सहाय सित्ता की किताबों में से एक किताब है। इसमें हज़रत बर्रा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि दोनों हाथों को आपने उठाया जिस वक्त नमाज शुरू फरमाई, हत्ता कि मैंने देखा कि दोनों हाथों के अंगूठों को दोनों कानों के करीब पहुंचाया, इसके बाद आखिर नमाज तक दोनों हाथों को नहीं उठाया। अब दूसरी हदीस मुबारका समात फरमाइए, जिसको रिवायत करने वाले जो हैं वो हज़रत अकलमा, उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु से रवायत किया, और इस हदीस मुबारका को इमाम तहावी ने शरह मानिउल आसार में जिक्र फरमाया। वो फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत फरमाते हैं कि आप सिर्फ शुरू की तकबीर में दोनों हाथों को उठाते थे, फिर इसके बाद आखिर नमाज तक हाथों को नहीं उठाते थे। उसके बाद नाज़रीन, तीसरी जो हदीस मुबारका है, इसको जिन मुहद्दिसीन ने रवायत किया उनमें इमाम तहावी हैं, जिन्होंने शरह मानिउल आसार में इस हदीस मुबारका को रवायत किया है, और वो फरमाते हैं कि हज़रत मुगीरा ने हज़रत इमाम इब्राहिम नखी से हज़रत वाइल बिन हजर की हदीस जिक्र फरमाई कि हज़रत वाइल बिन हजर ने से मरवी है कि फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप दोनों हाथों को उठाते थे जब नमाज शुरू फरमाते, और जब रुकू में जाते, और जब रुकू से सर उठाते। तो ये जो हदीस मुबारका है वो है जिसमें इसका जो पहला हिस्सा है वो है जिसमें रुकू के पहले रफ़ा यदैन करने का हुक्म दिया गया। जब ये बात हज़रत इब्राहिम नखी के सामने जब ये बात हुई, इब्राहिम नखी ने मुगीरा से कहा कि अगर वाइल बिन हजर ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह रफ़ा यदैन करते हुए एक मरतबा देखा है, तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 मरतबा रफ़ा यदैन न करते हुए भी देखा है, क्योंकि हज़रत वाइल इब्न हजर जिन्होंने रफ़ा यदैन की हदीस रवायत की है वो मदीना तैयबा के रिहायशी न थे, बल्कि इस्लाम कबूल करने के बाद चंद दिन मदीना मुनव्वरा में रहकर इस्लामी तालीमात सीख कर तशरीफ ले गए, जबकि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु सफ़र और हज़र में हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहने वाले सहाबी रसूल थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादमे खास भी थे, और लिसान नबुव्वत से इल्म फजल की सनद भी इन्हें हासिल कर चुके थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को उनकी पैरवी का भी हुक्म दिया है। नीज़ सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन भी उनसे इल्म हासिल करते और फतवा लेते थे। हज़रत उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा जैसे जलीलुल कदर असहाब इल्म फजल भी उनके कमाल इल्म की तारीफ फरमाई उन्होंने भी। और नाज़रीन, आप उसके बाद हम आते हैं तीसरी हदीस मुबारका की तरफ, जिसको रिवायत किया जाबिर बिन समुरा ने, और ये हदीस मुबारका है कहाँ, सही मुस्लिम में है। हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ
अब तशरीफ लाकर फरमाया कि मुझे क्या हो गया है कि मैं तुम लोगों को नमाज के अंदर अपने दोनों हाथों को उठाते हुए देखता हूँ, गोया कि ऐसा लगता है जैसे कि बेचैनी में घोड़े अपनी दुम को ऊपर उठा उठा कर हिलाते हैं। तुम नमाज के अंदर ऐसा हरगिज मत किया करो, नमाज में सुकून इख्तियार करो। अहबाब गिरामी कदर इस हदीस मुबारक में, जिसको जाबिर बिन समुरा ने रवायत किया और है भी ये मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक है, और इसमें तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल क्लियरली रफ़ यदैन को तर्क करने का हुक्म दिया कि तुम ऐसे कर रहे हो, बार बार हाथों को उठा रहे हो जिस तरह के घोड़ा जो है वो अपनी दुम हिलाता है। अब अंदाजा लगाइए कि जो इनकार कर रहे हैं उनके बारे में खुद यहाँ पर क्या फरमाया हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो कहते हैं कि रफ़ यदैन जो है वो लाजमी करना है। अब आगे सुनिए नाज़रीन, हजरत अब जो तीसरी जो हदीस मुबारक भी मैं आपके सामने जिक्र करने लगा हूँ, इस हदीस मुबारक को रवायत करने वालों में जामे तिरमिज़ी, यानी हदीस मुबारक जो है वो हजरत जामे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तिरमिज़ी में इसको रवायत किया, और हजरत और दूसरी किताब जो है वो सुनन अबी दाऊद में इस हदीस मुबारक को रवायत किया गया। हदीस मुबारक क्या है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि तुम आगाह हो जाओ, बेशक मैं तुमको हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़कर दिखाता हूँ। ये कहकर नमाज पढ़ाई और अपने दोनों हाथों को सिर्फ अव्वल तकबीर में उठाया, फिर पूरी नमाज में नहीं उठाया। अब इसके बाद जो अगली हदीस, अब ये कौन फरमा रहा है? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद, जो कि हर वक्त हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। अब हमारे गिरामी कदर इस हदीस मुबारक के बाद फिर आगे मजीद समात फरमाइए। इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने हसन कहा, और सहाबा, तबा ताबईन और ताबईन और बेशुमार मुहद्दिसीन और उलमा ने इस हदीस शरीफ को इख्तियार फरमाया। यही इमाम सुफियान सौरी, जलीलुल कदर मुहद्दिस और अहले कूफा ने इसी पर जो है वो अमल किया। अब इसके बाद हजरत अलकमा, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि इब्न मसऊद ने फरमाया कि मैंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे और हजरत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी, यानी हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे भी और हजरत अबू बकर सदीक और हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे भी। इनमें से किसी ने भी अपने हाथों को तकबीर तारीमा के अलावा किसी और तकबीर में नहीं उठाया, और इस हदीस मुबारक को सुनन कुबरा में अल बहकी ने रवायत किया है। अब उसके बाद फरमाते हैं, जनाब मालूम हुआ कि हजरत अबू बकर सदीक और उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जो बेइत्तेफाक उम्मत सब सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से अफजल है, और दुनिया और आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसाहिब हैं, सहाबा किराम में सबसे आलम है। उन्होंने हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज से सुन्नत को इसी तरह समझा कि तकबीर तारीमा के अलावा रफ़ा यदैन नहीं किया। आगे हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का अमल भी बहवाला आ रहा है, वो भी तकबीर तारीमा के अलावा रफ़ा यदैन नहीं करते थे। गोया कि खुलफाए रशीदीन महदीयीन रज़ी अल्लाह अन्हुम का जो अमल है वो तर्के रफ़ा यदैन है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खुलफाए रशीदीन का तरीका इख्तियार करने का भी हुक्म दिया। अगर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रफ़ा यदैन के बारे में सरी रवायत न भी होती, हालांकि मैं जिक्र कर चुका कि मौजूद है, तो फिर भी खुलफाए रशीदीन का अमल इसी तरह होता, तो भी तर्क रफ़ा की सुन्नत होने की काफ़ी ये दलील थी, क्योंकि सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दीन के हवाले से कोई बात भी बिला दलील न कहते थे और न ही उसके ऊपर वो अमल करते थे। इमाम नखई ने हजरत असवद बिन यजीद से नकल फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा, वो नमाज में सिर्फ शुरू तकबीर में हाथ उठाते, इसके बाद किसी भी वक्त जो है वो हाथ नहीं उठाते थे। और रावी कहते हैं कि मैंने इब्राहिम और आमर शाबी को भी ऐसा ही करते हुए देखा। इस हदीस मुबारक को भी इमाम इस शरह मानिल असार के अंदर इमाम तहावी अलैहि रहमा ने जिक्र फरमाया। उसके बाद हमारे गिरामी कदर आसम बिन कलीब अपने वालिद कल्ब जरमी से नकल फरमाते हैं कि उन्होंने कि मैंने हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को देखा कि फर्ज नमाज में सिर्फ तकबीर तारीमा में हाथ उठाते और इसके अलावा किसी भी और तकबीर में वो अपना हाथ जो है वो नहीं उठाते थे। इस हदीस मुबारक को मुवत्ता इमाम मुहम्मद में जिक्र किया गया। और हजरत इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे नमाज पढ़ी और वो दोनों हाथों को नमाज की सिर्फ पहली तकबीर में उठाते थे, इसके अलावा किसी और तकबीर में नहीं उठाते थे। और तो ये हजरत इब्न उमर हैं जिन्होंने
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ उठाते हुए भी देखा, और फिर उन्होंने खुद हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के बाद हाथ उठाना तर्क कर दिया। उनका हाथ उठाना तर्क करना हो नहीं सकता इल्ला ये कि उनके नज़दीक भी हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ा यदैन का अमल आपने यकीनन जो है वो मनसूख हो चुका था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद आपने हाथ नहीं उठाते थे। तो नाज़रीन, इस बहस करने का मकसद न तो ये है कि रफ़ा यदैन करने वालों को जो है वो बुरा भला कहना, अगर कोई किसी मुकाम पर कर रहा है लेकिन शिद्दत से कर रहा है कि न करने वालों को उनके ऊपर तानाज़नी करता है, उनके बारे में गलत बयान करता है, इसे खिलाफ सुन्नत कहता है, तो ऐसा शख्स कहने वाला न तो हदीस मुबारका से वाकिफ है, न हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ है, और न ही वो उम्मत मुस्लिमा का खैर खा है। तो मेरे नौजवानों से गुजारिश है कि खुदारा ये छोटे छोटे क्लिप जो कि 1 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट के जो क्लिप होते हैं, इनको सामने देखकर अपने जो है वो दीन बर्बाद मत किया करें। जब भी कोई ऐसी सूरत हाल हो, कोशिश किया करें असहाब इल्म से रब्ता किया करें। आपको कुरान करीम ने यही फरमाया, फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है तो आप पहले जिक्र से रब्ता करो। अब तो इल्म जो है वो हर तरफ मौजूद है, सिर्फ आपने पढ़कर बताना है। दुआ है अल्लाह करीम की ज़ात से कि जो मैंने बयान किया, अल्लाह करीम मुझे और आपको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और वो लोग जो हमारे नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, मुगालतों में डाल रहे हैं, अल्लाह ताला ऐसे मुफित्तन लोगों से, ऐसे फितना परवर लोगों से अल्लाह करीम उम्मत मुसलमा को नजात अता फरमाए, और उम्मत मुसलमा के नौजवानों को अल्लाह करीम हिदायत अता फरमाए कि वो दीन को सिर्फ शॉर्ट क्लिप्स में, सिर्फ यूट्यूब पर ही इंसार न करें, बल्कि वो उलमाए किराम से रब्ता फरमाए और इन चीज़ों को डीपली जो है वो समझें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हो सके तो इन दोनों क्लिप्स को मैं इकट्ठा करूंगा, तो आप इसको दूसरे लोगों तक भी जो है वो पहुंचाइए।